Hello everyone, I warmly welcomes all of you in today's session. As in the last session, we have been seeing types of pavement. Those are flexible pavement and rigid pavement. Further to that, we studied what is flexible pavement and how the layers wise naming is being allotted. As in the image you can see, one image is related to practical example, that is bituminous road is being shown, which is an best suitable example of flexible pavement, and in the second image you can see the differentiation between flexible pavement and rigid pavement. Likewise in the layers, only there is a difference in the layers and the functioning of that. Then further we see what is the technical definition of flexible pavement, then difference between these two and how the load of the vehicle is being transferred in both the pavements. Further we see rigid pavement with its example, that is concrete road, and its technical definition and structure of flexible and rigid pavement. I hope you all have been written regarding what is the flexible pavement, rigid pavement, and drawn their structural diagram. Still, if you didn't do that task, do it today or after today's session, and up to Monday's session, submit all these contents in written in your notebook. In today's session, we are going to start WBM roads, that is water bound macadam roads. So इसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स के टाइम पे, राइट. एंड एज द वर्ड इज इंडिकेटिंग, वाटर बाउंड macadam, the road pavement which obstruct the flow of water through its layer, through its component parts, is called as water bound macadam road. In the image you can see structure of water bound macadam pavement. The bottommost ground will be called as clay subgrade. This is your natural ground, clay subgrade. Above to that, subbase consisting of the coarser sand. coarser sand ग्राउंड लेवल के ऊपर हम लोग बारीक सैंड लेड करते हैं या फिर मुरुम की लेयर लेड करते हैं, ताकि एक फॉर्म बेस आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए मिल सके. Further to that, there is a base course of aggregates of size, or you can say the coarser aggregates of size 90 to 40 mm or 20 mm is being laid. For filling the voids or the gaps between aggregates, murum is being added. Further to that, there is a layer of stone. ठीक है, यहाँ पे लेयर ऑफ स्टोन है. यहाँ पे कौन से रहेंगे आपके स्टोन्स? 20 mm टू 12.5 या 12 mm तक के स्टोन्स की लेयर हम लोग स्प्रेड करेंगे. उसके बाद आता है लेयर ऑफ फिलर मटेरियल. फिलर मतलब अगेन उसके बाद बारीक एग्रीगेट्स. अब ये फिलर मटेरियल बारीक एग्रीगेट्स हो सकते हैं जिनकी साइज़ 12 mm से कम होगी, या फिर आपका सॉलिड मुरुम हो सकता है, या कोई नेचुरल सॉइल भी हो सकती है जिसकी प्रॉपर्टी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है. उस तरीके की सॉइल भी हम लोग लेड कर सकते हैं. एंड लास्ट इज लेवल फाइनलाइज्ड सरफेस विल बी कॉल्ड एज pavement surface. So these are the different layers. Now at the end of the layers, from two sides you can see there is a brick edging. ठीक है, brick edging क्या है यहाँ पर? See, this one is brick edging. अब ये क्यों की जाती है? ताकि जब लोडेड व्हीकल्स इस पेवमेंट के ऊपर से फ्लोट होते हैं या गुजरते हैं तो लोड अप्लाई होता है. ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड, if the material is not being compacted properly, it get loosened or get expanded, and this obstruction of expansion of material being restricted by the provision of brick edge at both the sides. And दोनों साइड्स में फिर हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? शोल्डर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर वाटर बाउंड मैकेडम. फिर से एक बार हम लोग देखेंगे. सबसे पहले है आपकी क्लेई सबग्रेड, जो ग्राउंड लेवल है, उसे लेवल करके उसके ऊपर हम लोगों ने कोर्सर सैंड अप्लाई की, उसके ऊपर स्टोन्स अप्लाई किए,
अगेन साइज वाइज उसको लेयर में हम लोग प्रोवाइड किया, जैसे कि लार्जर साइज वाले एग्रीगेट्स पहले, फर्दर टू दैट लोअर साइज एग्रीगेट, फर्दर टू दैट only filler material is being placed, and the rolled surface, finished rolled surface will be called as pavement surface. For obstructing expansion of this much portion, we provided this brick layer to both the sides to obstruct the expansion of material or expansion of pavement surface, and further to that at topmost layer this shoulder is being provided. Okay, this is your WBM road. Next we will see material requirement. What is the material required for construction of waterborne macadam road? First is coarse aggregate of size this much, like grading is given, size range is given, sieve sizes are given and percentage by weight passing the sieve. मतलब उस sieve के ऊपर से कितना weight of aggregate, कितने size के aggregate pass हो सकते हैं. If you consider 90 to 40, so what are the sieves will be considered for sieving purposes? जैसे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल में sieving on aggregates को छानना, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, जिसमें सीखा था हम लोगों ने कि आपके ऑल इन साइज एग्रीगेट पार्टिकल्स सैंपल में प्रेजेंट है या नहीं, या आपके सैंपल में स्पेसिफिक कौन से साइज़ के एग्रीगेट्स प्रेजेंट है. ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने सीविंग ऑफ एग्रीगेट किया था, जिसमें हम लोग जो सीव्स प्लेस कर रहे हैं उनकी यहाँ पर रेंजेस दी हुई है. एंड लास्ट टू दैट हियर परसेंटेज बाय वेट पासिंग ऑफ द सीव, कितना परसेंटेज वेट जो है, जैसे 100% है, समझो आपने 1 किलो एग्रीगेट का सैंपल लिया, वो पूरा का पूरा ये साइज सीव से पास होता है, तो पासिंग कितना हो गया 100%. इसमें से कितना पास होगा, वो परसेंटेज वाइज वैल्यूज आर बी शोन इन फर्दर टेबल. देन सेकेंड टेबल में क्या है आपका 63 to 40, ये क्या है साइज ऑफ एग्रीगेट्स. अब इन साइज के एग्रीगेट्स को सीव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट साइजेस के सीव्स यूज कर रहे हैं, और हर एक इंडिविजुअल इसमें क्या परसेंटेज पासिंग आपका मिल रहा है, दैट वी आर गोना नोट इट डाउन. क्विज में आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, सो प्रॉपरली पीपीटी ऑब्जर्व करो सो दैट यू कैन अटेम्प्ट क्विज सक्सेसफुली. सो इन दैट क्विज क्वेश्चन इज what is the size range is being considered of coarse aggregate for WBM construction road. So you can write 90 to 20 mm, 90 to 40, 63 to 40 or 50 to 20, any one out of this, or basically you should go for 90 to 20 mm. This is the size of coarse aggregates considered for WBM road construction. So उसमें सारे layers आ जाएंगे आपके. ओके, नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग मटेरियल. अब स्क्रीनिंग क्या होती है, द मटेरियल विच इज यूज्ड टू फिल द एक्सेस वॉइड्स प्रेजेंट इन द कॉम्पैक्टेड लेयर ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग. जैसे मैंने कहा था, एग्रीगेट्स लेयर करने के बाद उसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं और उसमें के वॉइड्स फिल करने के लिए हम लोग मुरूम ऐड करते हैं, तो उस मुरूम को कहा जाता है स्क्रीनिंग मटेरियल. द मटेरियल विच विल fill all the voids around and near the aggregates is being placed. So what is the size range? There is a grading classification A and B, and sizes for screening 12.5 and 10 mm. and इनके लिए हम लोगों ने ये sieves यूज़ की, और जिसका percentage passing weight हम लोगों ने sieving action से find out किया. These values are percentage passing value of sample through this much varying sieves. Okay, so this is your screening material. Next is binding material. Binding material which is going to be used for the construction of WBM road should be properly approved by engineer, and it should have the plasticity index value less than 6 mm. अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, एग्रीगेट्स प्लेस कर रहे थे, उन एग्रीगेट्स के वॉइड्स को फिल करने के लिए मुरूम या फिर कम साइज़ के एग्रीगेट्स ऐड कर रहे थे.
अब हमें सरफेस जो है स्मूथ बनाना है कि जिसके ऊपर से व्हीकल आपका जा सके। उसके लिए आपको लगता है टॉप मोस्ट लेयर में मुरुम, जो कि एक्ट करता है बाइंडिंग मटेरियल। बट ये जो मुरुम है ये कैसा होना चाहिए, आपका सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि क्या है, इसके वजह से आपका जो सरफेस है वो स्मूथ बनेगा, फर्म बनेगा, उसके ऊपर से व्हीकल आपका इजीली जा सकेगा। जब इस मुरुम में पानी ऐड होगा सो इट विल हैव अ पर्टिकुलर प्लास्टिसिटी। So for that purpose binding material is chosen. Further we will see construction procedure of WBM road. First procedure क्या है, preparation of foundation for WBM road. Foundation मतलब जो बेस है, जो आपका नेचुरल ग्राउंड है, उसे हमें प्रिपेयर करना है। प्रिपेयरिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले लेवल्ड करते हैं। So the subgrade or the base course is properly prepared for the required grade and camber of WBM road. The potholes, depressions on the surface of the road are properly filled up and compacted. ग्राउंड लेवल को लेवल्ड किया जाएगा, उसके ऊपर जो भी potholes मतलब खड्डे हैं या आपके डिप्रेशंस अप एंड डाउन पोर्शंस है तो उसको कटिंग एंड फिलिंग करके प्रॉपरली लेवल्ड किया जाएगा। सेकेंड, प्रोविजन फॉर लैटरल कन्फाइनमेंट। अब ये लैटरल कन्फाइनमेंट क्या होता है, जैसे हम लोगों ने इमेज में देखा था कि वी आर प्रोवाइडिंग ब्रिक लेयर एट द एजेस जस्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट द एक्सपांशन ऑफ पेवमेंट हॉरिजॉन्टल मैनर। सो फॉर दैट दिस लैटरल कन्फाइनमेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड और दैट कंसेप्ट इज इक्वल टू योर लैटरल कन्फाइनमेंट। बिफोर लेइंग ऑफ द एग्रीगेट्स द शोल्डर हैविंग थिकनेस as that of compacted WBM layer should be constructed. So they should be constructed with proper quality of murum or earth. The main purpose of constructing shoulders is that the road surface to be constructed retain in between them and it becomes easy for further laying of coarse aggregates. ठीक है, तो जो आप लोगों की ब्रिक की लेयर आने वाली है उसके नीचे आप लोगों को एक फ्लैटर प्लेटफॉर्म बनाना है just to obstruct the horizontal expansion, and this provision from bottommost layer up to the topmost layer will be called as lateral confinement or the provision of lateral confinement. Next step is spreading of the coarse aggregate. The coarse aggregates are uniformly spread on the prepared base after the construction of the shoulders. Total number of layers and thickness of WBM road depends upon the details of design pavement. अब क्या करना है, आपको लेवल हो गया, आपका लैटरल कन्फाइनमेंट का बेस भी बन गया। अब आपको स्टार्ट करना है एग्रीगेट्स लेइंग इन अ लेयर। सो जो आपका डिज़ाइन है उसके हिसाब से एक प्रॉपर थिकनेस में प्रॉपर साइज के एग्रीगेट्स आप ले डाउन करेंगे एंड कॉम्पैक्ट करेंगे। इन जनरल फॉर ऑर्डिनरी रोड्स सिंगल लेयर ऑफ कॉम्पैक्टेड थिकनेस 75 mm may be sufficient. For special roads, 2 layers of 150 mm each compacted thickness may be provided. अगर नॉर्मल रोड है आपका जहाँ पे व्हीकल ज़्यादा नहीं जाने वाले तो वहाँ पे 75 mm थिकनेस की पेवमेंट आपकी सफिशिएंट हो जाती है। बट जहाँ पर व्हीकल वॉल्यूम ज़्यादा है, लोडेड व्हीकल्स ज़्यादा पास होने वाले हैं, वहाँ पे आपको उसको प्रोवाइड करना है 150 mm ईच। ऐसे इसकी 2 लेयर्स रहेंगी। नेक्स्ट सेक्शन है आपका रोलिंग ऑपरेशन। रोलिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट फॉर कॉम्पैक्टिंग द कोर्स एग्रीगेट्स। जनरली इट इज डन विद द हेल्प ऑफ 3-wheeled पावर रोलिंग वेइज 6 to 10 tons और विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर रोलर्स। अब रोड रोलर्स आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें हम लोगों ने मूविंग इक्विपमेंट्स भी देखे थे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में कि शिफ्ट फुटेड रोलर्स है, आपके वाइब्रेटर रोलर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ग्राउंड को शेक करके या जो भी लेयर है पेवमेंट की आपने लेयर की हुई शेक करके उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो भी आपका ग्रैन्युलर मटेरियल है उसे जितना आप शेक करोगे वो क्या हो जाएगा, उतना कॉम्पैक्ट होते चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी वॉइड्स में एयर रहती है वो एयर निकल जाती है एंड दैट पोजिशन ऑफ एयर इज बिंग टेकन बाय द सॉलिड पार्टिकल्स। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा जब हम लोग आटे के डब्बे में आटा भरते हैं तो नॉर्मली ऐसे भर दिया उसकी कैपेसिटी तक तो क्या होता है वो कुछ दिन बाद सेटल डाउन हो जाता है। वही अगर हम लोग उसको दबा दबा के फील करते हैं तो उसके एक्सेस क्वांटिटी का आटा भी हम लोग उसमें फील कर सकते हैं। सो यही फिनोमिना आपका वाइब्रेटर रोलर यूज़ करता है
आपके ग्रैन्युलर पार्टिकल्स को लिटिल बिट वाइब्रेट करके उसमें से एयर निकाल देता है और अच्छे से उसको कंपैक्ट करता है, एंड दैट इज योर कंसीडर अंडर रोलिंग ऑपरेशन. फॉर दिस रोलिंग ऑपरेशन skilled operators should be used for driving the rollers, as the fall to rolling operation causes formation of corrugations, unequal finish of road surface, wearing of road in few months of construction. And this part is the very most important part in the construction activity. अगर आपके different layers के materials के layers compacted नहीं होंगे, so that will cause a major failure within 2-3 months. Failure like corrugation means separation of the material, it may happen, और wearing of the roads, surface जो है आपका properly नहीं रहेगा, hard रहेगा, friction आपका ज़्यादा generate करेगा between tire of vehicle and road surface etc. So the improper compaction of materials in layers will cause the failure of pavement within 2 to 3 months. For that purpose, we have to use the skilled labor, high capacity or high loaded rollers to have 100% compaction. Next step is application of screenings. After the rolling operation is properly finished, screening is applied to properly fill the voids remained after the compaction of aggregates. कंपैक्ट करने के बाद भी अगर अपने को दिख रहा है कि कहीं कहीं पे वॉइड्स है, तो वहाँ पर हम लोग स्क्रीनिंग मटेरियल ऐड करते हैं या फिर पूरे एक सरफेस के ऊपर स्क्रीनिंग मटेरियल ऐड करते हैं, ताकि इन केस अगर व्हीकल जाने के बाद भी कोई वॉइड्स जनरेट होते हैं तो ये ऊपर के लेयर का स्क्रीनिंग मटेरियल उसमें जाके फिक्स हो जाएगा. फॉर दिस द स्क्रीनिंग में बी अप्लाइड इन 3 or more layers as per the site condition. As per site conditions means अगर आपके साइट के ऊपर लूज सॉइल है, सैंड अवेलेबल है, तो हमें ये स्क्रीनिंग मटेरियल या हार्ड स्टोन की लेयर्स, कोर्स एग्रीगेट्स की लेयर 2 to 3 लेयर्स में प्रोवाइड करनी रहती है. अब ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आफ्टर सम टाइम और आफ्टर पासिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन द surface गेट सेटल्ड, राइट. सरफेस क्या हो जाता है आपका? सेटल डाउन हो जाता है, जिस वजह से आपके जो लेयर्स होती है वो सेग्रीगेट हो जाती है या डिसइंटीग्रेट हो जाती है या लेवल में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है. फॉर अवॉइडिंग सच अ सेटलमेंट ऑफ द पेमेंट्स वी प्रोवाइड 2 to 3 layers of each kind of material, one after the another. After uniformly spreading of screening, compaction is carried out with the help of dry roller for each layer of screening. अब जितने भी layers हम लोग स्क्रीनिंग प्रोवाइड करेंगे तो हर एक लेयर को हम लोग अच्छे से कॉम्पैक्ट करेंगे. और फिर उसके बाद आता है स्प्रिनिंग ऑफ वाटर एंड ग्राउटिंग. अब स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर एंड ग्राउटिंग, इसके ऊपर अब हम लोग पानी छिड़केंगे. आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग द रोड सरफेस इज प्रॉपरली स्प्रिंकल्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर. अब वाटर क्यों स्प्रिंकल किया जाता है? कि स्टिल कॉम्पैक्शन के बाद, स्क्रीनिंग अप्लाई करने के बाद अगर कोई वॉइड्स बचते हैं तो उन वॉइड्स में ये पानी जाके बैठेगा और वहाँ का जो भी मटेरियल है उसको अच्छे से मिक्स कर देगा या एक हार्डनेस अचीव करने में हेल्प करेगा. जैसे हम लोगों ने स्क्रीनिंग मटेरियल में एग्रीगेट्स कंसिडर किए या मुरम कंसिडर किया, तो उसकी जो भी पाउडर फॉर्म हो जाएगी वो पाउडर वाटर के साथ मिक्स होके जितने भी वॉइड्स है वो वॉइड्स को फिलअप कर देगी और लेयर को अच्छे से कंपैक्ट कर देगी. फॉर दिस पर्पज वी स्प्रेड द वाटर ऑन द सर्फेस. आफ्टर द वाटर इज स्प्रिंकल्ड, ब्रूमिंग इज डन टू स्वीप द वेट स्क्रीनिंग प्रॉपरली इनटू द वॉइड्स. अब ब्रूमिंग एक्शन क्या होती है? स्टिल अगर सरफेस के ऊपर छोटे बहुत एग्रीगेट्स या स्टोन्स लूज फॉर्म में है तो उन्हें हम लोग क्या करेंगे? साफ करेंगे, स्वीप करेंगे. एंड जो अगर वॉइड्स विजिबल होते हैं, कोई खड्डा दिख रहा है कि जहाँ पे मटेरियल प्रॉपरली नहीं फिल हुआ, वहाँ पे फिल करके उसको फिर से हम लोग कंपैक्ट करेंगे. नाउ फर्दर रोलिंग ऑप्शन इज कैरिड आउट फॉर प्रॉपर कॉम्पैक्शन. If the voids are still visible, then additional screenings can also be applied and properly compacted. Next purpose is application of binding material. Same procedure is used for the application of binding material as that of the screenings. Hereafter, each layer water is sprinkled and rolling operation is carried out.
After provision of the screening material, we go for the provision of binding material. Binding material हम लोगों ने कौन सा लेना है? मुरुम. अब मुरुम के अगेन हम लोग 2 से 3 लेयर्स लेड करेंगे और हर एक लेयर के टाइम पे वाटरिंग करके कॉम्पैक्ट करेंगे. At the time of rolling operation, wheels of the roller should be constantly watered so as to wash out the binding material that gets stuck on the wheel of the rollers. As we know, murum is having a little bit soil property, so whenever it gets wet, it gets attached on the rollers. For washing out all that material that is stick on the wheels, we have to apply water continuously while that roller is moving on the pavement surface. Now you have to allow for setting and drying of the surface. After the final rolling operation, the road is allowed to cure or set overnight. On the next day, if the depressions or the voids are still available, then again sufficient amount of screening or binding material can be used and compaction is done. अब इसे 24 घंटे के लिए हमें सेट होने के लिए, ड्राई होने के लिए छोड़ देना है. आफ्टर दैट अगर आपको सरफेस के ऊपर कोई क्रैक्स दिखते हैं, कोई पॉटहोल्स दिखते हैं, कहीं से लूज मटेरियल है, तो आपको सेकेंड डे मीन्स नेक्स्ट डे उसको क्लियर करना है. फिर से बाइंडिंग या स्क्रीनिंग मटेरियल अप्लाई करके कॉम्पैक्ट करके लेवलाइज्ड करना है. एंड द लास्ट इज प्रिपरेशन ऑफ शोल्डर. एट द टाइम ऑफ क्यूरिंग ऑफ द रोड, shoulders are constructed along the sides, feeling earth to specified cross slope. अब हम लोग क्या करेंगे, पेवमेंट हमारा बन गया और कोई भी फेल्यूर्स अवेलेबल नहीं है, तो अब इस स्टेज पे हम लोग शोल्डर के तरफ ध्यान देंगे. एजेस के जो आपके एजेस रहेंगे, एजेस से ग्राउंड लेवल तक हम लोग स्लोप में स्क्रीनिंग मटेरियल, मुरूम या एग्रीगेट्स का सबका मिक्सचर लेड करते हुए प्रॉपर स्लोप फॉर्म करते हुए शोल्डर्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे. एंड now on the next day the road will be open for the traffic flow. After proper drying and without any depressions, the road is then made open for traffic. For few days the traffic should be well distributed over full width of the road by placing obstacles longitudinally in the form of drums, barricades etc. मतलब पूरे रोड के ऊपर ट्रैफिक को हम लोग अप्लाई कर देंगे. अगर कहीं पे एजेस पे अगर मटेरियल प्रॉपरली कॉम्पैक्ट नहीं है तो वहाँ पे हम लोग बैरिकेड्स लगा देंगे और ट्रैफिक को प्रॉपरली मैनेज करेंगे. सो दिस इज योर प्रोसीजर ऑफ WBM रोड. फर्दर वी विल सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ WBM रोड. द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज कंपैरेटिवली लो एंड इट नो रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. ऑल्सो दे आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटीरियल, जैसे कि मुरूम अवेलेबल हो गया, सॉइल अवेलेबल है, कोर्स है, सैंड है, कोर्स एग्रीगेट है या सैंड है, तो उनको भी हम लोग प्रॉपरली मिक्स करके, प्लेस करके, कॉम्पैक्ट करके रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. इफ़ द WBM रोड्स आर मेंटेन प्रॉपरली एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट कैन रेजिस्ट लोड ऑफ ट्रैफिक विद द मैक्सिमम फ्लो. ठीक है, इसको अगर हम लोगों ने प्रॉपरली मेंटेन किया तो इट विल गिव यू द मैक्सिमम मेंटेनेंस. अब इसमें क्वाइट जो प्रोसीजर है सेम होती है इन बिट्यूमिनस रोड्स. इस स्टेज के बाद अगर आप बिट्यूमिन अप्लाई करते हो तो द रोड विल बी कंसिडर एज अ बिट्यूमिनन रोड, और बिफोर दैट द रोड विल बी कंसिडर अंडर वाटर बाउंड मैकेडम रोड. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ WBM रोड? मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई. Overall lifespan of these roads is less just because of what? Final layer is only of the murum or the stone. It is not of the bitumen road. If the WBM roads are not properly maintained, they can cause the inconvenience and danger to the traffic. जैसे कि रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में आप लोगों ने उसको कॉम्पैक्ट करना है 2-3 बार. वैसा नहीं होता है तो मटेरियल हेवी वाटर फ्लो की वजह से लूज हो जाता है एंड दैट पेवमेंट विल गेट फेल. As WBM roads are permeable to rainwater, it leads to softening and yielding of the subsoil. Means जो भी soil होती है वहाँ की आसपास की वो failure creates करती है due to heavy flow of water in rainy season. For avoiding such things, we have to place additional material and compact in 2 to 3 layers. So these are the disadvantages. And the review of today's session is
we seen WBM road, structure of WBM road, construction procedure of WBM road, advantages and disadvantages. So here is the end of today's session. After this session, I am sending you the quiz link. Also attend that quiz. Attendance of this today's session will be considered whoever attend that quiz, and up to the Monday or on the Monday session, write all these contents in your notebook and send it to me with their photographs. आप लोगों को इसको पूरा नोटबुक में लिखना है और इसके फोटोग्राफ्स मुझे आप लोगों ने सेंड करने हैं अप टू मंडे लेक्चर. ठीक है, यहाँ तक आपको क्या क्या लिखना है? पेवमेंट, टाइप्स ऑफ पेवमेंट, उनके स्ट्रक्चरल डायग्राम, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ रिजिड पेवमेंट, एंड फर्दर टू दैट दिस WBM रोड, कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. इतना पूरा आपको आपके नोटबुक में लिखना है. मैं इसके अलग से नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाली नहीं हूँ. सो फॉर दैट पर्पज you have 2 days for written, which is more sufficient. So I hope all of you will write all this content in your notebook and study properly. If you have any doubt, we will discuss in Monday's session. Till that, thank you.